India's forests are home to diverse wildlife that continue to fascinate nature lovers from around the world. From beautiful birds to the majestic elephants, there is endless variety on offer. However, the tiger continues to be the star attraction of the Indian jungles. To better protect tigers, it is important to know their current numbers. For this, in partnership with NTCA, WII and forest departments, WWF India is participating in estimation of tigers across India using camera traps. Earlier, they were trying to estimate tiger numbers through a census, where you actually go and count the number of animals in a reserve based on their pug marks. Now, it is universally accepted that pug marks are not a foolproof system. They're very faulty because a single tiger can have different kind of pug marks. We get a lot more information over the long term by using inexpensive camera traps and also to prove tiger occupancy. Like they say, a picture is worth 1,000 words. You can write a report about a landscape. You get one picture of a tiger in a corridor, you prove that the corridor is being used by that animal. So people are more convinced it is the best method we have about counting tigers. We have our camera traps running in the Western Ghats, Pake and Ameri in the northeast, and Pilibhit, close to Corbett. Pilibhit is located about 275 kilometers from New Delhi in northern Uttar Pradesh. The forests of Pilibhit offer a good habitat for a wide variety of wildlife. In partnership with the Pilibhit Forest Department, WWF India's researchers conducted a tiger science survey for the selection of suitable camera trap locations. On the basis of the presence of different signs like pug marks, scrapes, rakes, scats, suitability of the area for setting up a camera trap was determined. On the basis of the science survey, 30 best locations were selected for setting up camera traps. Tigers have got unique stripe patterns, so you can identify individual tigers just like you can through fingerprints in humans. So once you get enough number of pictures of tigers from a reserve, then you can estimate it through a process called mark recapture. So you don't have to get every tiger in the reserve, but if you can get a certain amount of tigers and again have those tigers recaptured in the camera trap pictures, then through a formula you can estimate the number of tigers in that protected area. For mounting the camera, as you can see, lots of grasses are there, so we have to clear the area. In this camera, this is a flash, and this point is a lens which captures the picture, and this is a thermo motion sensor. This sensor triggers the camera to click the pictures, and we have to wrap it round. It is ready for clicking the picture of a tiger. We used to check the data after every third day or fourth day. We download the data after every 10th day. The camera traps revealed the diverse animals inhabiting the Pilibhit forests like porcupine, fishing cat, rusty spotted cat, honey badger, common leopard, common palm civet, sloth bear, and of course the tiger, indicating the presence of a fairly good tiger density in these forests. How this helps tiger conservation is that unless you know what is available in your parks, you cannot know if you are conserving or managing these tigers well. WWF is working very closely with the forest department. Over these last 6-7 years, we were not having any scientific baseline data. So this exercise really helped for us all to know what is the baseline of the tiger estimates in the Pilibhit forest divisions. Such camera trapping exercises will go a long way in better management of tigers of India in general and Pilibhit in particular. And it's time to welcome our expert into the studio. आपका बहुत-बहुत स्वागत है, Dr. Ridhima Solanki, who is the coordinator, Public Sector Partnership, World Wildlife Fund. She is a wildlife scientist. आपका बहुत-बहुत स्वागत है. सबसे पहले मैं बहुत उत्सुक हूँ जानने के लिए कि
व्हाट इज़ अ वाइल्ड लाइफ साइंटिस्ट, वो क्या करते हैं और इसके लिए आपने क्या पढ़ाई की है? वाइल्ड लाइफ साइंटिस्ट का थोड़ा मुश्किल काम है जी। क्योंकि भारत हमारा बहुत ज़्यादा डाइवर्स है। जब आप बात करो केवल जानवर के बारे में ही नहीं, डिफरेंट हैबिटेट जो बोलते हैं, तो देयर सुंदरबन, देयर हिमालयाज, देयर वेस्टर्न घाट्स, इन सब में लोग भी रह रहे हैं, जानवर भी रह रहे हैं। और जैसे आपने कैमरा ट्रैप में देखा, एक छोटे से फॉरेस्ट में भी इतने डिफरेंट टाइप के जानवर रह रहे हैं और हर जानवर की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। तो हमें बहुत बैलेंस बना के चलना होता है, तो हमें सोल्यूशन ढूंढना होता है। कोई कहता है कि भाई यहाँ पे लोग भी रहने हैं, इनको पानी भी चाहिए, बट वहीं पे एलिफेंट भी आ रही है। तो हम कैसे उसको बैलेंस कर सकते हैं ताकि मानव और जानवर का संघर्ष कम रहे, पर एट द सेम टाइम दोनों लोग अच्छे से रह भी सकें, को अकर कर सकें। तो वो काम हमारा होता है वाइल्ड लाइफ साइंटिस्ट का। पहले होता था कि आपको बायोलॉजी में बैकग्राउंड चाहिए, टिपिकल मास्टर्स, जैसे मैंने किया था बैचलर्स मेरा ज़ूलॉजी, केमिस्ट्री, बॉटनी, वही टिपिकल इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हम करके आए थे। पर उस ज़माने में भी फॉरेस्ट्री के ऊपर बहुत ज़्यादा, फॉरेस्ट्री एंड वाइल्ड लाइफ साइंसेस, तो देहरादून में एक फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे पढ़ाया जाता है, फॉरेस्ट्री पढ़ाया जाता है। पर आज के ज़माने में इवन इंजीनियर्स एंड जो डिफरेंट बैकग्राउंड के हैं, स्टैटिस्टिशियन, वो लोग भी घुस रहे हैं इस फील्ड में। तो ऐसा कोई फिक्स स्टडी नहीं चाहिए। It's becoming more vast More now. vast. Also, we all know कि टेक्नोलॉजी हर जगह काफ़ी तरक्की कर रहा है। It's on its peak right now. तो वाइल्ड लाइफ में टेक्नोलॉजी का क्या रोल है? सो टेक्नोलॉजी ने, एक तो सच बोलूँ तो सबसे पहले काम आसान किया हम लोगों का, क्योंकि इतने बड़े एरिया में जब टाइगर के एक एग्जाम्पल मैं लेती हूँ, अगर टाइगर की, बाघ की ही बात कर रहे हैं, बाघ का संरक्षण जब स्टार्ट हुआ तो आपको नंबर चाहिए, कितने हैं। फिर एक बार आपने पहला नंबर निकाला, दूसरी बार फिर से आपको पता करना है कि भाई हमने जो एफर्ट डाले वो सक्सेसफुल हुए या क्या हो रहा है, कहाँ गलती हो रही है। तो फिर हमने क्या किया कि आपको उसका भी नंबर चाहिए। तो हर 4 साल पे आप इतना ज़्यादा एफर्ट डालोगे तो कितना भी आपका बड़ा स्टाफ हो, पॉसिबल नहीं है। टेक्नोलॉजी इसलिए चाहिए थी हमें। तो जब कैमरा ट्रैपिंग आया, कैमरा ट्रैपिंग को बोलते हैं नॉन इन्वेसिव टेक्निक। इसमें क्या होता है कि आपने कैमरा ट्रैप लगा दिया, फिर आप बाद में आके डेटा लेके चले जाओ और आपको पता चलता है कि कितने जानवर हैं या क्या स्थिति है जंगल की। तो इससे क्या हुआ कि अब इजी हो गया, हमारा काम इजी हो गया। फिर भी कैमरा ट्रैप लगाने में भी बहुत लोगों की ज़रूरत होती है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, रिसर्चर्स, वहाँ के लोगों को इन्वॉल्व करती है गवर्नमेंट। तो जब नंबर आ जाते हैं, जैसे ये एक्सरसाइज इतनी बड़ी थी कि 2018 वाला जो सेंसस था हमारा टाइगर का, वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आया है कि सबसे बड़ा कैमरा ट्रैप सर्वे कहाँ हुआ है, तो हमारा नाम आता है, इंडिया का नाम आता है। तो इसलिए उसमें भी जब आपने अगर पढ़ोगे कि ठीक है हमने एक्सरसाइज कर दी, पर जब नंबर आता है तो करीब 70,000 टाइगर के और कुछ ऐसे ही 50,000 आपके लेपर्ड के फोटोज आए होंगे, या ऐसे तकरीबन इतने। एंड टाइगर का जब इंडिविजुअल मार्किंग, लेपर्ड की इंडिविजुअल मार्किंग से जब आप पता करते हो तो नंबर आपके 3,000 आ रहे हैं, लेपर्ड के 18,000 के करीब तकरीबन आ रहे हैं। तो ये डिफरेंस कैसे, आप कोई भी कहेगा कि भाई 70,000 फ़ोटो थी तो और होने चाहिए, यू नो, इतने टाइगर। तो उसके लिए अब फिर से टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है, जिसमें कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पैटर्न रिकॉग्निशन। तो हम लोग बैठ के उसको आइडेंटिफाई करें एक एक टाइगर को, उससे अच्छा है मशीन जो है काम ये करती है, हमारे लिए आसान करती है, पहला प्रोसेस फिल्टर कर देती है। एंड देन वी कम अप विद दिस नंबर कि मतलब इतनी ज़्यादा फोटोग्राफ से जो कैमरा ट्रैपिंग से आई, फिर इतने नंबर ऑफ टाइगर और लेपर्ड कैसे हुए, वो आईडी कर करके
ये मशीन के थ्रू करते हैं हम। Well, I'm just curious to know, ये जो कैमरा ट्रैपिंग होता है, how do animals or tigers react to it? उनको क्या पता चलता है कि यहाँ पे कुछ ऐसा लगा है? Do they have some idea about it? डेफिनेटली जानवर इतने इंटेलिजेंट होते हैं एंड हम लोग जब इस फील्ड में घुसे थे तो हमें पहली चीज़, कई बार ऐसा हुआ, मैं बहुत बार जंगल गई, मुझे कभी टाइगर नहीं दिखता था, बहुत टाइगर्स के क्षेत्र में गई, कभी नहीं दिखा, लेकिन लोगों ने फिर वही कहा कि भाई आपको नहीं दिखता लेकिन उसको आप दिख रहे हो। तो आप ये सोचो अगर आपने कुछ लगाया है उनके घर के आसपास, तो पहले क्या होता था, कुछ कुछ कैमरा ना फ्लैश करते थे, तो फ्लैश से हम उनको बोलते हैं, उन जानवर को, स्पेशली जो लेपर्ड होता है वो बहुत शाई जानवर माना जाता है, तो अगर आपने फ्लैश दे दिया तो दोबारा उस रास्ते जाएगा ही नहीं, फिर वो पीछे से निकल जाएगा। तो हमें चाहिए होता है जब कैमरा ट्रैप हम लगाते हैं तो एक सामने एक पीछे लगाते हैं ताकि हमें दोनों तरफ का पता चले, तभी हम आईडी कर पाते हैं कि ये सेम जानवर है। अगर एक ही फ्लैंक दिखेगा हमें तो हमें नहीं समझ में आता। तो हमारे पास ऐसी फोटोज आती थी कि उसकी मुंडी दिख रही है, उसकी पूंछ दिख रही है, पीछे से भाग जाता था। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम उस कैमरा को फिर से इधर उधर थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं ताकि, तो एडजस्ट करवाना पड़ता है, हम भी अपडेट करते रहते हैं, वो भी गेम खेलता है, हम भी अपडेट करते रहते हैं। But they must be also adapting to this. They do in a certain way, they do adapt. बट इसीलिए इसको नॉन इन्वेजिव टेक्निक कही जाती है। इन्वेजिव इज कि आप उनको पकड़ के आप यू नो कुछ उनका एक्सपेरिमेंट कर रहे हो या उनका ये इट्स लाइक लीस्ट इन्वेजिव बोला जाता है कि आप उनको डिस्टर्ब हार्म टू द एनिमल एंड देयर डिस्टर्बेंस नहीं होता है उनके एक रेगुलर दिन टू दिन में। एक और चीज़, एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है पोचिंग और साथ में मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट। तो टेक्नोलॉजी इस क्षेत्र में भी कार्य कर रहा है। पहले क्या होता था कि जैसे हमारे पास, मैं ज़्यादातर अभी बाघ की ही बात करूँगी, तो पहले क्या होता था, अलग अलग जगह के बाघ हैं, वहाँ के जो फॉरेस्ट वाले हैं उनके पास पूरा है कि हमारे पास पिछले 5 साल से कितने बाघ हैं, उन सब की फ़ोटोज़ रहती थी। पर मान लीजिए अगर उनके क्षेत्र के पास में कहीं से किसी ने एक बाघ का स्किन पकड़ा, कैसे पता चलेगा? उन्होंने चेक किया, उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ का तो नहीं है, ये कभी आया नहीं कैमरा ट्रैप में। पर अब क्या हो रहा है कि अब टेक्नोलॉजी, इवन गवर्नमेंट ने भी ऐसा किया है कि एक डेटाबेस बनाते जा रहे हैं, तो उसमें रिपोजिटरी की तरह रख रहे हैं, सारे इमेजेस रहते हैं। तो अगर मान लीजिए आपने साउथ का कोई टाइगर है जो कि नॉर्थ में पकड़ा गया है, वो फोटो जो है उसमें रन होती है और वो बता देता है कि भाई यहाँ से पकड़ा गया। तो ये जो रियल टाइम इंफॉर्मेशन है जो कि पोचिंग में भी हेल्प हो रही है, कॉन्फ्लिक्ट में भी हो रही है, क्योंकि अगर आपने कनेक्टेड हो थ्रू टेक्नोलॉजी, थ्रू डेटाबेस, अगर आप आपस में कनेक्टेड हो तो आप इमीडिएटली बता सकते हो कि इवन जैसे एलिफेंट मूव कर रही है किसी रेलवे के डायरेक्शन में, तो अब हमारा एफर्ट ये होता है कि रेलवे वालों से हम बात कर लेते हैं कि भाई आपको हम बता रहे हैं इस एरिया में एलिफेंट आ रही है, आप थोड़ा अपनी स्पीड कम रखिए या थोड़ा ध्यान लुकआउट रखिए। तो उससे हानि हमको भी नहीं होती है, ह्यूमंस को भी, और जानवर की भी जान बच रही है। बिल्कुल। तो काफ़ी रेवोल्यूशनाइज हो रहा है, मतलब जैसे आपने बताया कि ट्रेन अगर जा रही है तो स्पीड स्लो हो जाती है। अच्छा, इससे एक और चीज़ आती है, आजकल हम संख्या बढ़ाने पे तो काम कर रहे हैं मगर उतने हैबिटेट भी इंक्रीज़ हो पा रहे हैं, और उसमें भी टेक्नोलॉजी का कुछ रोल है इन द इंक्रीजिंग ऑफ द हैबिटेट्स। ये हम लोग के लिए अभी बहुत मुश्किल चल रहा है। मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे भूटान का हम एग्जाम्पल लेते हैं, तो भूटान में उन्होंने क्या किया है कि प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं और उनके कॉरिडोर्स भी हैं, उनका अच्छा खासा एरिया जो है ग्रीन से कवर्ड है, तो उन्होंने उसको प्रोटेक्टेड एरिया का नाम दे रखा है कि इस प्रोटेक्टेड एरिया से दूसरी तरफ जहाँ जा रहा है उस कॉरिडोर को भी हम संरक्षण दे रहे हैं। भारत में भी हमने बहुत साल से ये एफर्ट स्टार्ट कर दिया है, पर थोड़ा सा मुश्किल है अभी, क्योंकि आप ऐसे तो आइडेंटिफाई कर लेते हो कैमरा ट्रैप से या जानवर को कॉलर करके, आप पता कर लेते हो कि कौन से एरिया से जानवर इधर से दूसरे पार्क में जा रहा है, वो कॉरिडोर हमें पता चल जाता है। बट उस कॉरिडोर पे कई लोगों का हक होता है, बिल्कुल अलग अलग लोगों की ज़मीन होती है, तो उस पे काम करने के लिए अभी थोड़ा सा एफर्ट
चल रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा लंबा बैटल है, इतना जल्दी सॉल्व नहीं होगा। तो बट इट इज़ वन ऑफ द वेरी इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, क्योंकि अब हमारे पास ये भी है कि हैबिटेट बढ़ाना ही नहीं, क्वालिटी ऑफ हैबिटेट भी बढ़ाना चाहिए। I was about to ask you, what are the things you keep in mind while developing a habitat for maybe tigers, if you're talking about them? हैबिटेट देखिए, एक तो होता है कि जोग्राफिकल फीचर्स क्या हैं उस एरिया के, हर एरिया के अलग अलग होते हैं। जैसे सुंदरबन का मैंने नाम लिया, सुंदरबन में टाइगर कितने साल से किस एरिया में, ये सब कुछ डेटा डिपेंडेंट है। अगर आपके पास पुराना डेटा नहीं है तो आप कुछ भी आगे का बता नहीं सकते। उसके बेस पे साइंटिफिक बैकिंग के साथ आप बताते हो कि भाई ये एरिया जो है इस ज्योग्राफी में बाघ प्रेफर कर रहा है, तो उसके संरक्षण हैबिटेट, तो जैसे कोई प्रे पे जब आप बाघ की बात करोगे तो बाघ जो खाता है वो डियर वगैरह होगा, तो वो डियर के लिए कौन सा घास, कौन सा हैबिटेट ज़्यादा अच्छा है। तो डायरेक्ट अगर आप देखोगे तो यही चीज़ है कि आप अगर एक वेटलैंड बचा रहे हो, वेटलैंड के आसपास का घास बचा रहे हो, डायरेक्ट टाइगर के लिए नहीं बचा रहे हो आप बचा रहे हो बिकॉज वहाँ पे बाकी एनिमल्स आए, एंड जब वो एनिमल्स आएंगे तो बाघ भी आता है। तो इस तरह से देखा जाता है। तो अगर बात करें ग्रास रूट लेवल की, तो क्या क्या काम किया जा रहा है ग्रास रूट लेवल पे वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए? तो हमारे यहाँ स्पेशली जैसे इतनी बड़ी एक्सरसाइज की मैं बात की, आप अगर केवल जानवर के बारे में ही जानना चाहोगे और मानव और इनके संघर्ष के बारे में जानना चाहोगे तो हर जगह फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, लेकिन फिर भी बफर एरियाज़ होते हैं, बाहर के एरियाज़ होते हैं जहाँ पे हम नहीं हैं। तो वहाँ पे अगर लोकल्स हेल्प करें तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। ये जब रिकॉग्नाइज हुआ तो ट्रेनिंग देना शुरू किया, रिकॉग्नाइज किया कि कौन वॉलंटियर करना चाह रहा है। विलेजेस में कई लोग होते हैं, यंगस्टर्स होते हैं जो कि समझते हैं कि हमें बाघ को बचाना है, हमें जंगल बचाना है, पर कैसे बचाना है कौन बताएगा हमें। तो उसकी ट्रेनिंग वगैरह हम लोग करवाते हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, WWF, WII, एवरीवन। तो हम लोग उनकी ट्रेनिंग करवाते हैं और बाघ मित्रा करके हमारा एक बहुत सक्सेसफुल प्रोग्राम चल रहा है। अभी आप पीलीभीत ही देखे थे, उसी एरिया में चल रहा है। वहाँ पे लोकल्स को आप ट्रेनिंग देते हो, फिर वो जो है बताते हैं कि जैसे जो फॉरेस्ट गार्ड का जो काम है वो लोग भी करते हैं। तो आपको बताते हैं कि यहाँ पे हमें दिखा किधर मूवमेंट है एनिमल का और वो सब। तो इमीडिएट जो हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, कभी भी देखिए टेक्नोलॉजी अलग से काम नहीं कर सकता, लोग अलग से काम नहीं कर सकते, दोनों का मिलन बहुत ज़रूरी है। तो टेक्नोलॉजी यूज़ करने के लिए भी हमें लोग चाहिए, और इसी तरह से बाघ मित्रा इज बहुत सुंदर बात आपने कही डॉक्टर रिद्धिमा। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमने कितनी खूबसूरत बातें जानी डॉक्टर रिद्धिमा से कि हमें अपनी वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए भी उतना ही जागरूक होना पड़ेगा, उसके लिए काम करना पड़ेगा। इट्स अ टू वे एफर्ट फॉर एवरीबडी टू मेक अ ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट टू लिव इन। एब्सोल्युटली, वही मैं हमेशा एक ही बात बोलती हूँ कि धरती जितनी हमारी है उतनी ही बाकी जीव जंतुओं की भी है, और सभी को जीने का उतना ही अधिकार है। और ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जंगल में जो बाकी विलेजर्स रह रहे हैं वो एक हार्मनी में रहे बाकी एनिमल्स के साथ। And with this, Priyadarshini, let us go to the next segment और देखते हैं what is up in Shot by Chance। डीडी मॉर्निंग शो के शॉट बाय चांस सेगमेंट की प्रसिद्धि लगातार बढ़ती जा रही है। इसका प्रमाण है हमारे पास इस सेगमेंट के लिए भेजे जाने वाले ढेरों फोटो और वीडियो। शॉट बाय चांस में इस बार हमने शामिल किए हैं 3 दर्शकों के फोटो। ये पहला फोटो भेजा है गुजरात से मिलाप माधिकर ने, जिसमें एक किलकिला या व्हाइट थ्रोटेड किंगफिशर एक गिरगिट को लगभग निगलने ही वाला है। ये दूसरी फोटो भेजी है पश्चिम बंगाल से स्नेहशीष प्रमाणिक ने। इसमें एक जगाना पक्षी बड़ी ही दक्षता से अपने बच्चों को अपने पीछे छिपाकर चल रहा है। और ये फोटो भेजी है पश्चिम बंगाल से ही सबुज धारा ने।
शिकार करते जल पक्षी अद्भुत दृश्य प्रस्तुत कर रहे हैं। इन सब फोटोज को भेजने के लिए हम दूरदर्शन की ओर से मिलाप माधिकर, स्नेहशीष प्रमाणिक और सबुज धारा का हार्दिक धन्यवाद करते हैं। यदि आपके पास भी जंगल में लिया गया कोई दुर्लभ फोटो या वीडियो है तो आप हमें मेल करें। हमारा ईमेल एड्रेस है ddmorningshow23@gmail.com।